وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا، خود پہ پرفیوم سپرے کر کے وہ پلٹا۔ سرخ و سفید رنگا کستری جسم، کانچ سے بھوری آنکھیں اور گلابی ہونٹ، بلا شبہ وہ 30 سال کا بہت خوبصورت نوجوان تھا، مگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سخت عیاش اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ سلیم وہ دھاڑا، جی صاحب، میرا فون کہاں رکھ دیا ہے؟ صاحب مجھے کیسے پتا ہوگا کہ آپ کا فون کہاں ہے؟ تمہیں نہیں تو تمہارے باپ کو پتا ہے کہ کہاں ہے فون؟ تمہیں کام پہ کس لیے رکھا ہے؟ جاؤ اور جلدی ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ بیچارہ سہم کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ تھا زریاب مرزا۔ گھر میں کیا، گھر سے باہر کیا، ہر کوئی اس کے نام سے تھر تھر کانپتا تھا۔ صاحب آپ کا فون، سلیم نے کہا۔ فون اس کے ہاتھ سے لے کر ایک غصے والی نگاہ ڈال کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ کلب میں جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی سیل فون بجی۔ ابے کمینے کہاں ہے؟ یلماز خان بولا۔ زریاب کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے پیچھے دیکھ زریاب بولا۔ ارے واہ، تو کب آیا کمینے؟ یلماز بولا۔ تجھے پتا ہے نا کہ تیرا بھائی وقت کی بہت پابندی کرتا ہے اور اپنے اصولوں کا خود مالک ہے۔ ہاں ہاں پتا ہے کہ کیپٹن زریاب مرزا اپنے اصولوں کے خود مالک ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اور سنا جگر کیسا ہے؟ بس یار، اللہ کا بہت کرم ہے۔ زریاب بولا۔ اچھا اب اندر چل، پارٹی کا موڈ ہو رہا ہے میرا۔ زریاب نے یلماز کو آنکھ ماری۔ وہ اس کی اس طرح سے آنکھ مارنے پہ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور دونوں اندر کی جانب چل دیے۔ پارٹی سے واپس آ کر وہ سیدھا اپنے روم میں گیا اور چینج کر کے باہر آیا اور سیدھا راحت بیگم کے روم میں گیا۔ دیکھا تو وہ دعا مانگ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آ گیا تو؟ راحت بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں میری پیاری دادی جان، آپ ناراض ہیں مجھ سے کیا؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں بھلا اپنے شہزادے سے کیوں ناراض ہوں گی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ بس مجھے تیری اور عالیہ کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد تم دونوں کا کیا ہوگا، اسی لیے کہتی ہوں کہ اب میرے لیے کوئی بہو لے آ۔ ارے میری پیاری دادی جان، پہلی بات تو آپ کو کچھ ہوگا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بہو بھی آ جائے گی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی اور وہ وہیں سو گیا۔ زریاب مرزا اور عالیہ مرزا دو ہی بہن بھائی تھے۔ زریاب کے پاپا شہباز مرزا ایک بزنس مین تھے۔ زریاب کو آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنی محنت کی بنا پر آرمی میں گیا بھی اور جلد ہی ایک بہت اچھی پوسٹ بھی حاصل کر لی۔ زریاب کی بہن عالیہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے زریاب کی لاڈلی تھی۔ وہ بھی زریاب کی طرح خوبصورت تھی۔ عالیہ 24 سال کی تھی اور ابھی یونی میں تھی اور اس کا ابھی 1 سال باقی تھا۔ زریاب کی ماما آسیہ مرزا کو گزرے ہوئے 15 سال ہو گئے تھے۔ اس ٹائم زریاب کی عمر 10 سال تھی۔ ان کے جانے کے بعد زریاب پہلے والا زریاب نہیں رہا تھا۔ رباب بیٹا آپ اٹھ بھی جاؤ، ہسپتال سے لیٹ ہو رہی ہو۔ ثانیہ بیگم بولی۔ جی ماما، اٹھ گئی۔ رباب اپنے خوبصورت لمبے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی۔ سرخ و سفید رنگت، گہری سبز آنکھیں، لمبی سراہی دار گردن اور سرخ رنگ کے ہونٹوں پر اس سادہ سے حلیے میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی اور سورج کی روشنی میں اس کا رنگ مزید چمک رہا تھا۔ یہ تھی 25 سالہ رباب علوی، اشفاق علوی کی اور ثانیہ علوی کی بڑی بیٹی، اور اس سے چھوٹا بیٹا عمر علوی جو ابھی 24 سال کا تھا اور ابھی یونی میں تھا۔ اس کا آخری سال تھا۔ ان کی چھوٹی سی فیملی میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ آل۔ وعلیکم السلام۔ آج جو میرا بیٹا اٹھ گیا، اشفاق صاحب بولے۔ رباب مسکراتی ہوئی ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی پاپا اٹھ گئی۔ بیٹا اور سناؤ، سب کام وام ٹھیک جا رہا ہے نا میرے بیٹے کا؟ جی پاپا الحمدللہ سب ٹھیک جا رہا ہے۔ عمر ماما کہاں ہے؟ بیٹا وہ یونی کے لیے نکل گیا ہے، پوچھ رہا تھا تمہارا۔ او اچھا ٹھیک ہے، میں بعد میں مل لوں گی اس سے، ابھی لیٹ ہو رہی ہوں، چلتی ہوں۔ ماما پاپا ٹیک کیئر، لو یو بوتھ۔ اوکے بیٹا، لو یو ٹو اینڈ یو آل، سو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ نکل گئی تھی۔ رباب آرمی ڈاکٹر تھی۔
اس کے پاپا کا بھی اپنا بزنس تھا مگر اس کا انٹرسٹ میڈیکل کی فیلڈ میں تھا اور اپنی قابلیت کی بنا پر وہ آج اس مقام پر تھی۔ ذریعہ ناشتے کی ٹیبل پر سے بریڈ کی سلائس اٹھا رہا تھا کہ اچانک شہباز صاحب نے پوچھا، اور بتاؤ بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ حالات کنٹرول میں ہے نا؟ جی ڈیڈ، سب کچھ ٹھیک ہے، ذریعہ مسکرا کر بولا۔ بیٹا اس مرتبہ کتنے ٹائم کے لیے فری ہو؟ فی الحال تو 1 منتھ کے لیے فری ہوں ڈیڈ، ذریعہ بولا۔ ذریعہ بیٹا، جی ڈیڈ، شادی کب تک کرنی ہے تم نے؟ شادی کا نام سن کر ذریعہ کا حلق کڑوا ہو گیا۔ یار ڈیڈ، کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ دادی بھی کل بول رہی تھی شادی کا جب ہونی ہو جائے گی، کیونکہ آپ سیٹ ہو رہے ہیں آپ سب، کہہ کر وہ رکا نہیں اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ذریعہ بہت غصے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، اچانک یلماز کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ یلماز تو واٹ سرپرائز! کیسا ہے جانی؟ میں ٹھیک ہوں میری جان، تو بتا تو کیسا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں جگر، چل آجا میرے کمرے میں چلتے ہیں، ذریعہ بولا۔ اوکے چل۔ سن ذریعہ، آج میرے فرینڈس کی برتھ ڈے پارٹی ہے رات میں، تو چلے گا؟ ٹھیک ہے، یلماز بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں یلماز، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ اوئے تجھ سے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے، اور میں کچھ نہیں سننے والا، سمجھا؟ ذریعہ نے اس کو گھور کر دیکھا تو یلماز مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پر ذریعہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چل، نیچے چل کر میرے ہاتھ کی اچھی سی کافی پی۔ ارے آج ذریعہ مرزا کافی بنائیں گے، وہ بھی میرے لیے۔ اچھا نا، اب زیادہ ڈرامے نہ کر اور چل سیدھے طریقے سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رباب آج جلدی فری ہو گئی تھی ہاسپٹل سے، اسی لیے وہ جلدی گھر آ گئی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو دیکھا عمر صوفے پر بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے السلام علیکم عمر، تم کب آئی؟ میں بس تھوڑی دیر پہلے آئی۔ تم بتاؤ کیسی پڑھائی جا رہی ہے؟ پڑھائی بھی ٹھیک جا رہی ہے الحمدللہ۔ تم بتاؤ آپی، تمہارا کام ٹھیک جا رہا ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ ویسے آپی ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ رباب اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ میرے بہنوئی کب تک آ جائیں گے؟ کیا عمر؟ تم رکو میں بتاتی ہوں، بہت باتیں آ گئی ہیں نا تمہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی مگر عمر فل سپیڈ میں ہنستا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ وہ بھی ہنس دی۔ اوپر اپنے کمرے میں آئی تھی کہ اس کا سیل ٹون بجتے دیکھ تو مراحل کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان؟ ہاں جان میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو رباب، آج رات کو میرے بھائی علی کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور تم نے آنا ہے۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، اوکے؟ اوکے ٹھیک ہے، رباب مسکرا کر بولی۔ مناہل انصاری رباب کی بہت کلوز فرینڈ تھی۔ وہ رات کی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینز، ساتھ میں بلیک کلر کی کوٹ میں۔ وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی سیلف ٹون بجی، کتنی دیر ہے جگر؟ یلماز بولا۔ ہاں یار، بس نکل رہا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی لگائی اور گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ آف وائٹ کلر کے فراک میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ میں ریڈ کلر کی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل تھا صرف، اور کانوں میں وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے آویزے پہن رکھے تھے اور لمبے سیاہ بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے چلی آئی۔ ماما، وہ بولی، میں اپنی فرینڈ مناہل کے بھائی کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہوں، کچھ ٹائم تک آ جاؤں گی۔ اوکے بیٹا، مگر دھیان سے جانا۔ اوکے مما، اللہ حافظ۔ آدھے گھنٹے میں وہ پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم میری جان، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام جان، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مناہل بولی۔ تھینکس جانی، وہ مسکرا کر بولی۔ مائی پلیئرز جان، وہ مسکرا دی۔ اچھا آؤ، میں تمہیں اور لوگوں سے ملواتی ہوں۔ اوکے چلو، رباب نے کہا۔ اور کیپٹن صاحب کیسے ہیں آپ؟ ارے آپ رانا صاحب، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ کہاں ہوتے ہیں آپ آج کل؟ نظر ہی نہیں آتے۔ ارے رانا صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا کام وطن کی حفاظت کرنا ہے، اور جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ کریں گے، تو بس وہی۔ اور آج کل بہت سی نیو بوائز ان ہو رہے ہیں تو ان کو ٹریننگ کرنا، گائیڈ کرنا، وہی بزی ہوتا ہوں۔ ذریعہ بولا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے سر، ہمیں آپ جیسے نوجوانوں پر فخر ہے جو ہمیں اور ہمارے ملک بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تھینکس رانا صاحب، یہی تو ہمارا فرض ہے۔
ज़रियाब मुस्कुराया। ज़रियाब हाँ क्या हो गया? चल तुझे किसी से मिलवाना है। अच्छा रुक, ओके राना साहब फिर मुलाकात होगी। ओके सर, हाँ चल अब किससे मिलवाना है? चल तो सही मेरे साथ। यलमाज उसको किसी ने आवाज़ दी, आता हूँ, तू रुक मैं अभी आया। यलमाज बोला। वो पीछे पीछे जाने मुड़ा ही था कि ज़रियाब की बुरी तरह टक्कर हुई किसी के साथ। आई एम सो सॉरी, तन पता नहीं, ध्यान नहीं दिया किससे हो गया। असल में रुबाब के हाथ में जूस का गिलास था और वो अपने ध्यान में ही चली आ रही थी और उसको नहीं पता था ज़रियाब से टक्कर होते टाइम सारा जूस उसकी टी शर्ट पर गिर गया। व्हाट द हेल, अंधी हो, नजर नहीं आता क्या? ज़रियाब कम आवाज में मगर तन्हाई गुस्से में बोला, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, आपको कोई हक नहीं है कि इस तरह से बात करें मिस्टर। जानती भी हो किससे बात कर रही हो? हाँ, एक नहायत बदतमीज शख्स से बात कर रही हूँ। रुबाब गुस्से में बोली। ज़रियाब मिर्ज़ा नाम है मेरा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है किससे टक्कर ली है तुमने? हाँ मुझे पता भी कैसे होगा? वैसे भी आप जो कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझसे गलती से जूस गिर गया, मैंने सॉरी बोल दिया। आगे आपकी मर्ज़ी है मिस्टर खड़ूस। रुबाब की ये बात सुनकर तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। तुम्हें तो मैं बताऊंगा। वहाँ ये सब मौजूद थे इसलिए ज़रियाब खामोश रहा। रुबाब वहाँ से मुंह बनाकर चली गई। हाँ भाई अब बोल। यलमाज बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना ज़रियाब? और ये तेरी शर्ट पर जूस कैसे गिरा? कुछ नहीं, ध्यान नहीं दिया तो गलती से गिर गया। यलमाज, हाँ बोल, ये लड़की कौन है? कौन सी लड़की? अरे ये जिसने सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहन रखा है। ओ हाँ, ये रुबाब है, मनाहिल की दोस्त। इसका पूरा नाम क्या है? रुबाब अलवी। अलवी नाम सुनकर उसकी आंखों में वो सारा मनाजर आ गया कि कैसे इन लोगों ने इसकी माँ को उससे जुदा किया था। जब आसिया मिर्ज़ा की डेथ हुई थी इस टाइम वो बच्चा था मगर उसके दिमाग में उल्वी लफ्ज़ बैठ गया था। ज़रियाब, तुझे पता है कि ये सिटी की काफ़ी पॉपुलर आर्मी डॉक्टर है और अपने बाप की लाडली बेटी है। ज़रियाब के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। अच्छा सुन, बोल, ये आज से भाभी है तेरी। वर्ड, तू होश में है ना? तू शादी के नाम से भी दूर भागता है और अब ये सब। मेरी जान, तुझे पता है ना कि तेरा भाई कुछ भी बगैर मकसद के नहीं करता। मतलब कि लड़की मुझे अच्छी लगी है और ये ही तेरी भाभी बनेगी और कोई भी नहीं। ज़रियाब का दीवानापन देखकर यलमाज भी हैरान था। इस वक्त ज़रियाब के दिमाग में क्या चल रहा था पता लगाना मुश्किल था। वापसी पे रुबाब का मूड बहुत ख़राब था। बहुत ही कोई खड़ूस किस्म का बंदा है यार। वो मनाहिल को सारी बात बता रही थी कॉल पर। यार तुम्हें क्या ज़रूरत थी ज़रियाब से पंगा लेने की? बहुत ही सख्त किस्म का बंदा है, जो काम करने की ठान लेता है वो करके ही रहता है। मनाहिल फिक्रमंदी से बोली। डोंट मेरी जान, कुछ नहीं करेगा, तुम इस सीरियल के लिए मूड ना ख़राब करो। रुबाब बोली। मनाहिल बोली। कुछ देर वो बातें करती रही, फिर वो सोने के लिए चली गई। पार्टी से वापस आने के बाद उसने एक नंबर डायल किया। हेलो जी सर, आगे से जवाब आया। हाँ सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है, मुंह मांगी कीमत दूंगा। जी जी सर, आप हुक्म करें। रुबाब अलवी, जानते हो उसे? हाँ जी सर, ये तो सिटी की काफ़ी पॉपुलर आर्मी डॉक्टर है। इसका मुकम्मल बायोडाटा, ये कहाँ रह आती है, कहाँ जाती है, कहाँ किससे मिलती है, पता लगाओ। और हाँ जी सर, हुक्म करें। अरसलान अलवी, अगर ये इसकी ही भतीजी है तो मुझे अभी ही रिपोर्ट करो और काम 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ओके सर। 1 घंटे के बाद उसको कॉल आई। सर आपका शक ठीक था, वो वही है। उसने कॉल काट दी थी। जरा आपकी आंखों के सामने बार बार रुबाब का खूबसूरत चेहरा लहरा जाता था, सबसे बढ़कर इसकी गहरी सब्ज आंखें। मानना पड़ेगा ज़रियाब मिर्ज़ा, तुम्हारे दुश्मन भी बहुत खूबसूरत है मिर्ज़ा। मज़ा आएगा तुमसे बदला लेने में, तुम्हें जीती जी मारने में मज़ा आएगा। कहकर उसका कहका बुलंद हुआ। वैसे तो ज़रियाब मिर्ज़ा लड़कियों से दूर भागता था, लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन आज तक उसको कोई ऐसी नहीं मिली जिस पे वो मरे। मगर अब रुबाब को देखकर एक दफ़े के लिए उसका दिल धड़का ज़रूर, मगर वो ये नहीं भूल सकता था कि वो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है और इससे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगली सुबह वो राहत बेगम के पास गया और बोला, दादी जान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। दरअसल मुझे शादी करनी है। क्या तुम? और शादी? हाँ, क्यों नहीं कर सकता क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, तुम्हें तो अभी शादी नहीं करनी थी ना। हाँ, पर क्या करूं, किसी ने बेचैन कर दिया है ना मुझे। जरा आपने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा अब जल्दी नाम बताओ मेरी बहू का। रुबाब उल्वी नाम है उसका। नाम सुनकर राहत बेगम के चेहरे का रंग उड़ा था। क्यों दादी, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं हुआ।
अच्छा आप डैड से बात कर लें और मैं चाहता हूँ आप प्रपोजल लेकर जाएं रबाब के घर। ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा। राहत बेगम बस मुस्कुरा दी, लेकिन अब सच में इनको फिक्र होने लगी कि आगे क्या होगा। बाज़ औक़ात इंसान जैसा सोचता है वैसा नहीं होता, मगर हमारे बारे में हमारा अल्लाह हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। बेटा शहबाज, अब सारी बात तुम्हें बता दी है, अब बताओ क्या करना है। राहत बेगम बोली, अम्मी जान आपको पता है कि 15 साल पहले जो कुछ भी हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, मगर इसमें रुबाब की और उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं थी। इस सब में तो एक दफ़ा इनके एक दफ़ा इनके घर जाकर रिश्ता मांगने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। राहत बेगम बोली। रात को सब खाने की टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक आलिया बोली, अरे ये क्या भाई, मेरे लिए भाभी भी ढूंढ ली और मुझे बताया भी नहीं। सब हंसने लगे। अरे भाई की जान, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी बस अचानक ही मिल गई और मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। इसके लिए सॉरी मेरी प्यारी बहन। जया मुस्कुरा कर बोला, इट्स ओके भाई। आलिया मुस्कुरा कर बोली, हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और दादी जान फिर आज आप और डैड जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, इरादा तो यही है, अब आगे अल्लाह खैर करे। जया ऊपर अपने कमरे में आ गया। बस कुछ वक्त और फिर चिड़िया पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। तुम्हें मेरी यूं बेइज्जती किस करने का हक किसी ने भी नहीं दिया। और तुम्हें बहुत शौक है ना आग में हाथ डालने का। तुम्हें इस बेइज्जती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रुबाब अलवी, बहुत बड़ी कीमत। और वैसे भी तुमसे कुछ पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। ये सोचकर जरा आपके चेहरे पर खूबसूरत मगर खतरनाक मुस्कुराहट बिखर गई। रुबाब बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिंदगी उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। राहत बेगम और शहबाज साहब ने सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक और सानिया बेगम ने जवाब दिया, आप लोग आए ना? अंदर आए। सब अंदर जाकर ड्राइंग रूम में बैठे। वकार जाओ, जाकर खाने का इंतज़ाम करो और ठंडा भी लेकर आना। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये सब जहमत ना करें, हम बस थोड़ी देर के लिए ही आए हैं और कुछ ज़रूरी बात करनी है आप दोनों से। अच्छा तो वकार, तुम चाय ले आओ सबके लिए। दरअसल आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अचानक कितने टाइम के बाद कैसे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। राहत बेगम बोली, जी जी अम्मा जी, आप बोले क्या बात है। राहत बेगम बोली, असल में मेरा पोता ज़रियाब तुम्हारी बेटी रुबाब के साथ शादी करना चाहता है। वो पसंद करता है आपकी बेटी को। इशफाक साहब और सानिया बेगम ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर इशफाक साहब बोले, मगर हमारे बच्चे 15 साल पहले क्या हुआ कुछ नहीं जानते। हाँ बेटा, और बेहतर भी यही है कि कुछ नहीं ना जाने इस बारे में। राहत बेगम बोली, शहबाज भाई, मैं एक बार अपनी बेटी रबाब से पूछना चाहूँगा इस बारे में, हमें थोड़ा टाइम दें। ठीक है अशफाक भाई, आप लोगों को जितना टाइम चाहिए आप ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है तो फिर हमें इजाज़त दीजिए। शहबाज साहब बोले थे, अस्सलाम वालेकुम। ऑल वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा आ गया। जी पापा आ गई, थक गई हूँ ना। जब पापा बहुत थक जी पापा बहुत थक गई हूँ। ओके बेटा जाके आराम करो। ओके पापा, थैंक कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। शाम को वो सोकर उठी और शावर लेकर नीचे आ गई। रुबाब बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी पापा बोले, मैं सुन रही हूँ। इशफाक साहब और सानिया बेगम ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर इशफाक साहब बोले, दरअसल बेटा तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल आया है। अच्छा, कौन लोग हैं वो? आई मीन इनके बेटे का नाम क्या है? शहबाज मिर्ज़ा के बेटे ज़रियाब मिर्ज़ा, प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। व्हाट? ज़रियाब मिर्ज़ा? ज़रियाब का नाम सुनकर रुबाब ने एक झटके से अपना सर उठाया। अचानक ही उसका दिल धड़का। क्यों क्यों धड़का? इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। हाँ बेटा, इसमें गलत क्या बात है? खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान है, दुनिया तारीफ करती है उसकी, और अच्छा लड़का है। मम्मा होगा इसमें ये सब, मगर मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी, मैं और आगे जाना चाहती हूँ। सॉरी मम्मा पापा, आप प्लीज़ मुझे गलत ना समझें, बट अभी शादी नहीं करनी मुझे। कहकर रुबाब रुकी नहीं और वहाँ से निकलती चली गई। अब बताएं इशफाक, आपकी लाडली ने तो मना कर दिया है, तो क्या जवाब देंगे इन लोगों को? सानिया बेगम बोली, क्या जवाब देंगे? बोल देंगे कि अभी हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती, और क्या। अशफाक साहब बोले और सानिया बेगम ने इन्हें बस खामोश नज़रों से देखा। अगले दिन इशफाक साहब ने शहबाज साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई और साथ में माजरत भी कर ली।
अस्सलाम वालेकुम। और ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जी डैड बोले, कोई बात है क्या? हाँ, अभी इशफाक का फ़ोन आया था। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? रुबाब ने शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर ज़रियाब को सख्त किस्म का तहश आया। फिर जो उसने किया, उसके हाथ में पानी का गिलास को उसने इतने ज़ोर से दबाया कि वो टूटकर किची किची हो गया और कुछ टुकड़े उसके हाथ में भी चुभ गए। बेटे, ये क्या पागलपन है? देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है। राहत बेगम फिक्रमंदी से बोली, ज़रियाब देखो बेटा। क्या देखूं बा डैड? आपको पता है कि जो चीज़ ज़रियाब मिर्ज़ा को अच्छी लगती है उसको वो हासिल करके ही रहता है। और अगर ज़ुबाब ने मुझसे शादी की ली किए के लिए हाँ ना की तो मेरा नाम भी ज़रियाब मिर्ज़ा नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। राहत बेगम ने फिक्रमंदी से शहबाज साहब की जानिब देखा था। ज़रियाब बाहर जा रहा था कि अचानक राहत बेगम ने उसको आवाज़ दी, बेटा देखो, अभी तक तुमने हाथ पर बैंडेज नहीं की, कितना खून ज़ाया हो गया है। दादी जान, जिसने मरहम दिया है वही मरहम लगाएगी, जिसने जख्म दिया है वही मरहम लगाएगी। ज़रियाब ने मुस्कुराकर हाथ बेगम को देखा और बाहर निकल गया। आज रुबाब ने सब्ज रंग के कमीज के साथ नीचे ब्लैक कलर टॉप पहन रखी थी, बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया जिसमें से दो लिटें निकलकर इसके खूबसूरत होठों को छू रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई। रुबाब, बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं मम्मा, मैं लेट हो गई हूँ, वही कुछ खा लूँगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके मम्मा, अल्लाह हाफिज़। ज़रियाब आज जल्दी उठ गया और नाश्ता करके तैयार हो गया और अस्पताल की तरफ निकल गया। आज तैयार रहना रुबाब अलवी, क्योंकि आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहा है। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक इसकी सेल टून बजी। हेलो सर। हाँ बोलो। काम हो गया जैसे आपने कहा था। ओके गुड, तुम्हारा इनाम जल्दी मिल जाएगा। ओके सर। और अब की बार ज़रियाब का कहका बुलंद हुआ था। रुबाब अपने रूम में थी कि अचानक एक नर्स रूम में आई। डॉक्टर रुबाब। जी सिस्टर, बाहर कोई पेशेंट आया है, इनका हाथ काफ़ी जख्मी है, मगर वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आपसे बैंडेज कराएंगे वरना नहीं करवाएंगे। अच्छा, ऐसा कौन हो सकता है? अच्छा, आप इनको अंदर भेज दें। ओके डॉक्टर। नर्स बोलकर निकल गई। दरवाजे पे दस्तक हुई। यस कमन। रुबाब बोली, अस्सलाम वालेकुम। ज़रियाब ने कहा। ज़रियाब को देखकर रुबाब को नहायत गुस्सा आया, मगर खुद पर काबू पाते हुए उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर मरियल, आप कहाँ यहाँ कैसे? क्यों नहीं आ सकता? क्या नहीं, मैंने ऐसा कब कहा हूँ? वैसे आज से या पहले आप जितना घटिया शख्स मैंने नहीं देखा। और इसके इस तरह बोलने पर ज़रियाब हंसा और बोला, ठीक कहा मिस मिर्ची, मैं घटिया ज़रूर हूँ, मगर सिर्फ आपके मामले में। मतलब? रुबाब ने पूछा। ज़रियाब ने रूम को लॉक किया। व्हाट रबिश, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई रूम को लॉक करने की? मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। वो जाने ही लगी थी कि ज़रियाब ने इसके को बाजू से पकड़कर खींचा और वो इसके सीने से आ लगी। एक मतलब फिर दोनों के दिल धड़क उठे। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? मगर अनजाने इसकी आंखों में कैसा सहर था, वो खो सा गया। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने आपके घर प्रपोजल भेजा था, लेकिन आपने इनकार कर दिया। अच्छा नहीं किया, और आपको हाँ करनी ही होगी। वैसे भी मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूला अभी तक। आप होश में हैं? क्या बात कर रहे हैं? मैं हरगिज आप जैसे शख्स से शादी नहीं करूंगी। ओ रियली? या रियली? ओके वेट। उसने एक अपने फ़ोन से वो उसने अपने फ़ोन में रुबाब को एक पिक दिखाई और पिक देखकर रुबाब के होश उड़े। वो कोई और नहीं, इसका अपना छोटा भाई उमर था। उसको ज़रियाब के बंदों ने उठा लिया था। देखा मिस मिर्ची, आपका लाडला छोटा भाई उमर उल्वी। अगर इसकी सलामती चाहती हैं तो शादी के लिए हाँ कर दो, वरना तुम खुद समझदार हो। आगे ज़रियाब ने कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी ज़रियाब मिर्ज़ा, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी, समझी? ज़रियाब घबराया और फिर एक झटके से रुबाब को छोड़ा और जाकर दरवाजे को अनलॉक किया और फिर वापस आया। चलो शाबाश, ये रोना धोना बंद करो। 2 घंटे हैं हम तुम्हारे पास। मुझे हाँ में जवाब चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, है ना? और हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया कि कल तुम्हारी याद में अपने हाथ को नुकसान पहुंचा लिया था मैंने। और फिर वो इसके करीब आया और बोला, जख्म तुमने दिया है तो मरहम भी तुम ही लगाओगी। मेरे बाप की आंखों में आंसू निकल आए थे। ना चाहते हुए भी उसने इसके हाथ पे बैंडेज करते वक्त वो मुसलसल उसी की जानिब देख रहा था। तो वो उसकी दुश्मन, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उसको हैरान कर दिया। बदले के साथ साथ वो इसकी जिद भी बन चुकी थी। डॉक्टर रुबाब,
नर्स आकर बोली, जी सिस्टर, बाकी पेशेंट भी वेट कर रहे हैं। ओके आप जाएं, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। ओके डॉक्टर। ओके मिस मिर्ची, मैं चलता हूँ, और हाँ मैं वेट करूँगा आपकी जवाब का, और ये रहा मेरा नंबर, इस पर आप कॉल करेंगी। एंड यूर टाइम स्टार्ट नाउ, बाय। इसको आंख मारता वो वहाँ से निकल गया। उसके जाती रुबा वाशरूम में चली गई, और वाशरूम में जाकर उसने रोना शुरू कर दिया। क्या करूँ, नहीं मैं उमर को कुछ नहीं होने दूंगी, खुद से कहकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में गई और साथ ही ज़रियाब का नंबर डायल किया। अरे वाह क्या बात है, इतनी जल्दी ही मेरी याद अभी आ गई। बकवास बंद करें। अच्छा जी, फिर चलो फिर बोलो क्या बात है। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। क्या, एक दफ़ा फिर से बोलो। अब की बार रुबाब को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कंट्रोल कर गई। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। अच्छी बात है, समझ गई, जल्दी ही। अब प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दें, ठीक है? वो अब से कुछ टाइम के बाद बिल्कुल से सलामत तुम्हारी आंखों के सामने होगा, ठीक है? रुबाब बोली, ओके फ्यूचर वाइफ, अपना ख्याल रखो। वैसे भी अब कुछ टाइम ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें खुद, क्योंकि बाद में पूरी ज़िंदगी मैंने ही जो रखना है तुम्हारा ख्याल। गुस्से में आकर रुबाब ने कॉल काट दी थी, और रुबाब के कॉल कटने पर ज़रियाब दिलकशी से हंसा था, और उमर कुछ ही देर में घर बिल्कुल ठीक ठीक पहुंच गया था। रुबाब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उमर ने घर में इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था कि वो पिछले 3 घंटे से कहाँ था, क्योंकि इसको कसम के कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और वो किसी को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने घर में सबको बोल दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, मगर रुबाब इस बारे में जानती थी, और वो चाहकर भी उस बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। रुबाब ने वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगते वक्त इसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैंने जो फैसला लिया है वो बहुत बड़ा है, मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे हिम्मत और बहुत सा हौसला अता करें। आमीन सुम आमीन। मम्मा पापा, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। रबाब बोली, हाँ बेटा बोलो, मैं तैयार हूँ ज़रियाब मिर्ज़ा से शादी के लिए। क्या, मगर क्यों बेटा, तुमने मना कर दिया था ना, तो अब क्या हुआ? अशफाक साहब बोले, दरअसल पापा, मैं आपकी और मम्मा की बातें सोचती रही कल रात, और मुझे लगता है आप दोनों ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी तो शादी करनी ही है ना एक दिन, एक तो इसलिए। अच्छा बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, मगर हमने इनको इनकार कर दिया था ना, क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? सानिया बेगम बोली, अरे तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं शहबाज से बात कर लूँगा। अशफाक साहब बोले, यहाँ आओ बेटा। अशफाक साहब ने रुबाब को अपने पास बुलाया और उससे अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह तुम मेरे बच्चे को बहुत सी खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन, रसानिया बेगम ने कहा। रुबाब की आंखों में आंसू आ गए और कुछ गालों पर बह निकले, क्योंकि वो जानती थी कि ज़रियाब इसके साथ कैसा सलूक करेगा। लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ज़रियाब ने कहा था कि तुम से कुछ पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत से सवाल इसके दिमाग में चल रहे थे। अशफाक साहब ने शहबाज साहब को फ़ोन करके खुशखबरी दी। राहत बेगम ने तो खुशी से नहाल हो गई। वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी अपने पोती की शादी में, और फिर शादी की तारीख रख ली गई। 2 हफ्ते के बाद रुबाब को हमेशा हमेशा के लिए ज़रियाब का हो जाना था। दोनों घरों में ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां जारी थी। अभी अभी शाबा लेकर आई थी कि अचानक इसके सेल टून बजी। देखा तो ज़रियाब साहब की कॉल आ रही थी। इसके चेहरे के जाविये बिगड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रूही, वालेकुम अस्सलाम। ये रूही कौन है? रुबाब ने पूछा। आज से मैं तुम्हें रूही बुलाया करूँगा, और रूही के नाम से तुम्हें सिर्फ मैं ही बुला सकता हूँ। किसी और ने कहा तो जिंदा गाड़ दूंगा उसे। ज़रियाब ने अब की बार संजीदा होकर कहा, हो गई ये हीरो बनती, अब बताना पसंद करेंगे कॉल क्यों की मुझे? मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, शॉपिंग भी चलेंगे साथ में, तुम्हारा सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। ज़रियाब ने मुस्कुरा के कहा, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ तुम्हें। 10 मिनट में आ रहा हूँ, रेडी रहना। बोलकर कॉल काट दी ज़रियाब ने। रुबाब पैर पटकती हुई वाशरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने शहर के महंगे तरीन मॉल के आगे गाड़ी आकर रोकी। वो दोनों अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, रुबाब ने जवाब दिया। सर, मैम के लिए किस किस्म की ज्वेलरी चाहिए आपको? सेल बॉय ने कहा। जैसी ये खुद है, इस किस्म की सबसे अलग और मुफरद किस्म की चीज़ चाहिए। उसने रुबाब के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा। रुबाब ने चौंक कर ज़रियाब को देखा। सेल बॉयज ज़रियाब की जानिब देखकर मुस्कुरा दिया। ओके सर, ये देखें, ये कैसा है? सेल बॉय ने एक खूबसूरत हीरे का सेट ज़रियाब के सामने किया। इसको ट्राई कर सकता
कर सकते हैं अभी? जी सर, क्यों नहीं। ओके चलो। रूही न चाहते हुए भी इसके साथ जाना पड़ा। अब रुबाब शीशे के सामने खड़ी थी, वो नेकलेस पहन रही थी मगर वो लॉक नहीं हो रहा था। हटो, मैं बंद करता हूँ। ज़रियाब इसके साथ पीछे ही खड़ा था। फिर बस वो इसके करीब आया और नेकलेस को लॉक किया। रुबाब की सांसें तेज हो गई। परफेक्ट, ज़रियाब ने कहा। नेकलेस की खूबसूरत गर्दन पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसकी प्राइस कितनी है? ज़रियाब ने पूछा। सर, इसकी प्राइस 10 लाख है। पैक कर दें इसको, और ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड। ओके सर, थैंक्स यू माय प्लेयर। चलो रोहित चलें। वो दोनों साथ में बाहर आ गए। रोहित सुनो, ज़रियाब बोले। रुबाब को बहुत उलझन हो रही थी। तुम्हारी ड्रेस का कलर सोचा है तुमने? नहीं सोचा अभी तक। सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी मर्जी का कलर पहनोगी। प्योर रेड कलर नहीं पहनना मुझे। और मेरी बात सुन ले आप ज़रियाब साहब, मैंने आपसे शादी के लिए हाँ सिर्फ अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए की है, और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हर टाइम मुझ पे अपनी मर्जी मुसलत करेंगे, समझे आप? रबाब डोटेक लहजे में बोली थी। ज़रियाब को रबाब का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ज़रियाब गाड़ी को मोड़कर एक सुनसान जगह पर ले गया। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे घर जाना है प्लीज़। रुबाब घबरा गई, मगर ज़रियाब खामोश रहा और एक खुले मैदान में जाकर गाड़ी रोकी और रुबाब का हाथ पकड़कर उसको खींचता हुआ एक कोने में ले गया। उसने रुबाब को दोनों बाजुओं से पकड़कर दीवार के साथ लगाया और बोला, आज तो तुमने ऐसी बात कर दी, मगर आइंदा से कि तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़रियाब तनाए गुस्से में बोला, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। वो अपना आप छुड़वाते हुए बोली, और रही बात ना करने की, तो वो मैं करूँगी, बार बार करूँगी। क्या कर लेंगे आप? इस वक्त रुबाब पे ये मुहावरा बहुत सूट कर रहा था। आ बैल मुझे मार। उसने रुबाब की नाजुक कमर में बहार डालकर खुद से करीब तरीन किया और बोला, सांसें छीनूंगा तुम्हारी। ज़राब धाड़ा, याद रखना। ये कहकर उसने इसकी कमर को सख्ती से दबाया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू देखकर ज़रियाब ने रुबाब को छोड़ा और कहा, चलो। बाकी का सफ़र खामोशी से कटा। घर पहुंचकर रुबाब सीधा अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर वो फूट फूट कर रोई। या अल्लाह, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे? प्लीज़ मेरी मदद करें। इसके रोते हुए कब आंख लगी इसको पता ही ना चला। आज इन दोनों की मेहंदी थी। सुबह से तैयारियां जारी थी। ज़रियाब हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज में बहुत प्यारा लग रहा था। रुबाब ने हरे और पीले रंग का शरारा पहन रखा था, साथ में गजरे दोनों हाथों में और हरे और पीले रंग की मैचिंग की चूड़ियां भी पहन रखी थी। और उसके मेहंदी भरे हाथ मेकअप में उसने सिर्फ लिप ग्लॉस और आंखों में गहरा काजल था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर तरफ रौनक ही रौनक थी, मगर कोई रुबाब के दिल से पूछता कि उसने कैसे अपने दिल को काबू में रखा था। ज़रियाब लोग इनके घर आ चुके थे। मेहंदी लेकर आलिया सबसे आगे आगे थी। वो पिंक कलर के लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। उमर कब से इसकी जानिब देख रहा था। उमर ने उमर ने सफ़ेद रंग की शलवार और सब्ज रंग की कमीज पहन रखी थी। ज़रियाब काफ़ी टाइम से रुबाब की तरफ देख रहा था। सब इसकी आसपास थे, मगर वो उदास थी। ज़रियाब इसके पास बैठा था, मगर उसने एक मर्तबा भी उससे कोई बात नहीं की थी। ज़रियाब की कॉल आ गई, उसने इसलिए वो शोर वाली जगह से निकल कर दूसरी साइड चला गया। वापस आया तो रुबाब वहाँ नहीं थी। उसका दिल बेचैन हो गया। आलिया, बात सुनो। ज़रियाब ने कहा, जी भाई। रूही किधर गई है? भाई वो असल में भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इनको आराम करने को बोला। वो अपने कमरे में है अभी। ओके, मैं मिलकर आता हूँ। ओके भाई, आलिया ने कहा। रुबाब अपने कमरे में खिड़की में से नजर आते चांद को देख रही थी कि अचानक ज़रियाब इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। वो पलटी तो ज़रियाब से जा टकराई। तुम्हारे टकराने की आदत कब जाएगी बेबी? ज़रियाब ने शोख लहजे में कहा, रास्ता छोड़े मेरा। ज़रियाब हट गया सामने से, मगर वो जैसी ही जाने लगी, इसकी कमर से पकड़कर उसने उसको अपनी जानिब खींचा। एक दफ़ा फिर ज़रा रवाब के दिल ने अथल पथल मचा दी। ज़रियाब के इतने करीब आकर, मुझसे जितना दूर जाओगी मैं इतना पास आऊँगा। ज़रियाब ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दें। रुबाब बार बार दरवाजे की जानिब देख रही थी। उसके खूबसूरत बालों में से एक लिट निकल रही थी। वो उसे बार बार पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर मेहंदी लगी थी हाथ में, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी। वो पीछे कर रही थी कि अचानक ज़रियाब ने इसकी लिट को पीछे की जानिब सरकाया और बोला, बस आज की रात, और कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी है बेबी।
तैयार रहना, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ तुम और मैं जानता हूँ कि हम दुश्मन हैं। और हाँ, मुझसे किसी भी किस्म की रहम की उम्मीद ना रखना, क्योंकि मैं दुनिया के लिए अच्छा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। आखिरी बात कहते हुए उसने रुबाब के हाथ को इतनी जोर से दबाया कि कुछ चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गईं और वहां से खून रसने लगा। ये बोलकर वो रुका नहीं और वहां से निकल गया। रुबाब भी अपने आंसुओं को साफ करती नीचे आ गई। मेहंदी की तकरीब खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और पूरी रात रोती रही। और इधर ज़रिया पूरी रात पार्टी करता रहा, या यूं कह सकते हैं वो अपनी जीत का जश्न मनाता रहा। अरे रुबाब बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गई, लगता है अच्छी तरह से नींद पूरी हुई है तुम्हारी, सानिया बेगम बोली। मगर उनको क्या पता था कि बेचारी रुबाब की रातों की नींदें उड़ गई हैं। बेटा तुम नाश्ता कर लो, फिर पार्लर भी जाना है तैयार होने के लिए, सानिया बेगम बोली। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? सानिया बेगम रुबाब के पास जाकर बैठ गई। मेरी जान रुबाब, देखो अल्लाह है ना तुम्हारी मदद और तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, ऐसे रोते नहीं हैं। एक दिन सबको माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सारे सारे तुमसे मोहब्बत करते हैं और सबसे बढ़कर जरिया वो बहुत चाहता है तुम्हें, सानिया बेगम बोली। चलो शाबाश, अब जब मुस्कुराओ। और जुबाब ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी थी। सुबह से ज़रियाब के घर में चहल पहल थी। ज़रियाब ब्लैक और रेड कलर की शेरवानी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। रुबाब तैयार हो चुकी थी प्योर रेड कलर के लहंगे में, जिसमें जगह जगह सफ़ेद मोतियों का काम हुआ हुआ था, पहन रखा था। साथ में वही डायमंड का सेट जो ज़रियाब के साथ लिया था पहना था। वो हसीन तरीन लग रही थी। पार्लर से लेने इसके उसको आलिया आई थी। माशाल्लाह भाभी, तो आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, भाई तो पागल ही हो जाएंगे आपको देखकर। आलिया रुबाब की तरफ आंख मारते हुए बोली, पागल तो तुम्हारा भाई वैसे भी है। रुबाब ने दिल में सोचा, क्योंकि ज़रियाब शुरू से ही प्यार के लिए तरसा था। ज़रियाब की मामा के जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया था, इसीलिए यलमाज खुश था कि रुबाब के आने के बाद ज़रियाब का दिल लग जाएगा। और ज़रियाब ने यलमाज को बोला भी था कि रुबाब उसको अच्छी लगती है, मगर यलमाज को क्या पता था कि ये सब ज़रियाब ने रुबाब के साथ बदला लेने के लिए किया था। आलिया सफ़ेद और मैरून कलर के फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उमर को आलिया पहली दफ़ा में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, उमर ने आलिया को सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, आलिया ने जवाब दिया। सब लोग शादी की रस्मों में मसरूफ़ थे, इसलिए मौका देखती ही उसने आलिया से बात की। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? उमर ने पूछा। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, आलिया ने कहा। आपसे एक और बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? जी बोले, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आलिया ने मुस्कुरा कर कहा। माई प्लेयर्स, उमर ने कहा। आलिया बेगम ज़रा इधर तो आना, आलिया बेटा ज़रा इधर तो आना। राहत बेगम ने आलिया को पुकारा। आई दादी जान। आलिया जाने लगी क्यों, फिर से उमर बोला, आप कब मिलेंगी? आलिया ने मुड़कर उमर को देखा और मुस्कुरा कर बोली, जब अल्लाह ने चाहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं इतना सब्र कैसे करूं? उमर बोला, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ ही है उमर साहब, कहकर वो मुस्कुराई और चली गई। उमर के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। रुखसती के वक्त हो गया था। रुबाब बहुत ज़्यादा रोई। इशफाक साहब के सीने लग कर, मगर जाना तो उसको था। रुबाब जब से मिर्ज़ा हाउस आई थी तब से सब इसके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे थे। रुबाब को आलिया और राहत बेगम बहुत अच्छी लगी थी और शबाज साहब भी उसको शफकत साहब जैसे ही लगे थे, मगर ज़रियाब का सोचकर उसकी हालत गैर हो जाती थी। और अब तो इसको हर एक पल इसके साथ रहना था। रात के 1 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ, देखा तो रुबाब खिड़की के पास खड़ी हुई थी। वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जैसे ही वो पलटी तो ज़रियाब को अपने इतने करीब देखकर उसके होश उड़ गए। वो जाने लगी, जब भी उसने उसको कमर से पकड़ा और इसकी एक बाजू को मरोड़ा। इसको तकलीफ हुई थी। हेलो बेबी, कैसा लगा रहा हूँ मैं? ज़रियाब ने पूछा। प्लीज़ ज़रियाब, मुझे जाने दें। रुबाब की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं बेबी, अभी तो हाथ आई हो और अभी तो मेरा इंतकाम शुरू हुआ है। 15 साल से तड़प रहा हूँ और तुम कह रही हो छोड़ दूं? तुम बहुत खूबसूरत हो बेबी, आज से पहले तुम जैसी खुशीन लड़की ज़रियाब मिर्ज़ा ने कहीं नहीं देखी। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे प्यार किया जाए। कसम खाता हूँ इतना तड़पाऊंगा तुम्हें कि तुम खुद मौत मांगोगी मुझसे, मगर फिक्र ना करो, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। वो धाड़ा। रुबाब अपनी जगह कांप कर रह गई। फिर उसने इसका दुपट्टा एक तरफ उतार कर फेंका। रुबाब अच्छी तरह से जानती थी कि ज़रियाब अब क्या करेगा। प्लीज़ नहीं,
پلیز نہیں ذریعہ، مجھے جان سے مار دو لیکن یہ مت کرنا۔ رباب روتی ہوئی التجا کر رہی تھی لیکن ذریعہ کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے رباب کو بیڈ پر دھکا دیا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ رباب چیختی رہی، چلاتی رہی مگر ذریعہ کو رحم نہیں آیا تھا۔ صبح جب ذریعہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رباب اس کے پاس نہیں تھی بلکہ وہ نیچے دیوار کے ساتھ ایک طرف کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھٹے ہوئے ہونٹ جن میں سے خون رس رہا تھا اور اس کی گردن پہ دانتوں سے کاٹنے کے نشان، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ رات کو ذریعہ نے غصے میں ہر حد پار کی تھی۔ ایک منٹ کے لیے تو ذریعہ کو بھی رباب کی حالت دیکھ کر دل میں ہول اٹھا مگر پھر وہی بدلے کی آگ حاوی ہو گئی۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور بولا، کب تک یوں ہی شوق مناتی رہو گی؟ اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ ذریعہ نے کہا، کیا کہا؟ میں نے سنائی نہیں دیا۔ اس نے ایک بازو سے رباب کو پکڑ کر جھنجھوڑا، چپ چاپ جا کر کپڑے چینج کرو اور رونا بند کرو ورنہ اب کی بار اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ رباب واش روم چلی گئی، شاور کھول دیا کیونکہ کچھ ٹائم وہ یوں ہی بھیگتی رہی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ شاور لے کر نکلی اور تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ارے بھائی، بھابھی آ گئی۔ عالیہ بولی، ارے روحی تم آ گئی، کب سے تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ ذریعہ جان بوجھ کر سب کے سامنے اچھا بنا اور آخر آ کر اس کے ہاتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ رباب بولی، وعلیکم السلام۔ سب نے جواب دیا، کیسی ہو بیٹا؟ راحت بیگم بولی۔ انہوں نے رباب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ارے بیٹا، تمہیں تو شدید قسم کا بخار ہے۔ راحت بیگم فکر مندی سے بولی، ذریعہ تم نے رباب کا خیال نہیں رکھا ٹھیک سے؟ نہیں دادی جان، رات کو تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ ذریعہ بولا، بھابھی آپ خود ڈاکٹر ہیں اور آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھتی ہیں۔ عالیہ بولی، بیٹا یہ لو تم جوس پیو۔ راحت بیگم نے زبردستی رباب کو تھوڑا سا جوس پلایا۔ بھابھی چلیں آپ میرے ساتھ، آپ کو میں میڈیسن دے دوں اور آپ آرام کریں، انشاءاللہ رات تک ٹھیک ہو جائیں گی یار۔ رباب عالیہ کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ ذریعہ بلیک اور وائٹ کلر کے سوٹ میں مبلس تھا، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ رباب نے اسکائی بلو کلر کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی، اس کا گلا کافی بالکل بند تھا، وہ اس لیے کیونکہ رات کو جو حرکتیں ذریعہ صاحب نے کی تھیں اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ ہمیشہ کی طرح رباب آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ ڈارک ہونے کی وجہ سے اس کے ظاہری نشان تو چھپ گئے تھے مگر اس کے دل پر جو گھاؤ لگے تھے ان کو کون چھپاتا۔ عالیہ نے ولیمے پہ پنک کلر کی ساڑی پہنی تھی، اس میں وہ بالکل بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ عمر نے سلور کلر کا سوٹ پہنا تھا، وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ولیمے کی تقریبات بخیر و عافیت سے انجام پائی تھی۔ رباب سب کے سامنے خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کرنے میں کامیاب رہی تھی مگر یہ سب اس نے کیسے کیا تھا یہ وہ جانتی تھی یا پھر اس کا اللہ۔ وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ ذریعہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کو دعا مانگتا دیکھ کر وہ رک گیا۔ کچھ تھا اس کے چہرے میں جو اس کو رکنے پر مجبور کرتا تھا۔ رباب نے دعا ہلا کر رکھ دیا تھا ذریعہ مرزا کو۔ وہ ذریعہ مرزا جس کو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، ایک معمولی سی لڑکی نے یہ سب کیسے کیا تھا؟ ذریعہ کو رباب اچھی ضرور لگتی تھی مگر اسے اپنے بدلے کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرے لیے بد دعا کی ہوگی ہے نا؟ ذریعہ نے جان بوجھ کر رباب کو چھیڑا۔ رباب نے اگنور کیا۔ نہیں مانگی کیا؟ پھر بھی جواب نہیں آیا۔ کیوں نہیں مانگی؟ آخر کا تنگ آ کر رباب نے جواب دیا، کیونکہ میں آپ جیسی خود غرض اور گری ہوئی نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں تمہیں خود غرض اور گرا ہوا لگتا ہوں؟ ہاں جواب دو۔ ذریعہ نے قریب آ کر پوچھا۔ اس وقت ذریعہ کو شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ رباب نے جواب نہیں دیا اور وہاں سے جانے لگی ہی تھی کہ ذریعہ نے بازو سے پکڑ لیا۔ میری بات کا جواب دو پہلے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز چھوڑیں مجھے۔ رباب بولی، نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ کیا کرو لوگی؟ رباب نے اپنا ایک ہاتھ ذریعہ کے ہاتھ پر رکھا۔ اس نے کوشش کی چھڑوانے کی لیکن ذریعہ کی گرفت مضبوط تھی۔ ذریعہ کو اب مزہ آنے لگا تھا۔ سب کچھ آزمانے کے بعد جب رباب کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے ذریعہ کے ہاتھ پر کاٹا۔ آؤ! ذریعہ کے منہ سے نکلا، تم تو پوری جنگلی ہو۔ ذریعہ نے کہا، ہاں میں ہوں جنگلی مگر صرف آپ کے معاملے میں، کہہ کر رباب رکی نہیں تھی۔ ذریعہ کو بعد میں سمجھ آیا کہ وہ تو اس کا ڈالا اس کو ہی بول کر گئی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ رباب کچھ دیر بعد روم میں آئی تو ذریعہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے شکر کیا۔ جیسے ہی وہ پلٹی سامنے ذریعہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا روحی، مجھے مس کر رہی تھی کیا؟ ذریعہ نے کہا، نہیں الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں۔ ذریعہ ہنس دیا
रुबाब ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। वापस आओ अपनी जगह, ज़रियाब ने संजीदगी से कहा। नहीं, मेरी यही जगह है और मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, है ना? मतलब, रुबाब ने कहा, मतलब ये। ज़रियाब उठा और रुबाब को अपनी गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारें मुझे। ज़रियाब ने जाकर रुबाब को बेड पर लिटाया और फिर खुद भी साथ आकर लेट गया। रुबाब ने कई दफ़ा उठने की कोशिश की, मगर ज़रियाब ने उसको कमर से पकड़ रखा था। वो हिल भी नहीं सकती थी। सुबह सब टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। बेटा, तुम्हारी छुट्टी कितनी रहती है? शहबाज साहब ने पूछा। 1 वीक डैड। ज़रियाब ने रुबाब की जानिब देखा और फिर बोला, मैं रुबाब को भी साथ लेकर जाऊंगा। रुबाब ने एकदम सर उठाया। अरे नहीं बेटा, रुबाब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। राहत बेगम ने कहा, हाँ भाई, वैसे भी मेरा दिल नहीं लगेगा भाभी के बिना। आलिया झट से बोली, तो फिर मेरा दिल कैसे लगेगा तुम्हारी भाभी के बिना? सब हंस पड़े सिवाय रुबाब की, क्योंकि वो जानती थी ये सब कौन सा ज़रियाब दिल से कह रहा था। नाश्ता करने के बाद रुबाब ऊपर आ गई थी। वो तैयार हो रही थी कि ज़रियाब ऊपर आया। स्किन कलर के फ्रॉक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़रियाब दरवाज़ा बंद करता हुआ इसके करीब चला आया। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बोला, इतनी बन सवर कर कहाँ जा रही हो? ज़रियाब रुबाब को दिलचस्पी से देखता हुआ बोला, अपने आशिक से मिलने। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? रुबाब ने जानबूझकर ज़रियाब को चिढ़ाया। ज़रियाब की रगें तन गई। रुबाब के पास आया और उसको बालों से दबोचा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बकवास करने की? आइंदा के बाद कुछ ऐसा बोला तो ज़बान काट दूंगा तुम्हारी। और एक बात कान खोल कर सुन लो और मेरा अपने दिमाग में बिठा लो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। कैसा इंसान था, कैसी जनूनियत थी क्या इसकी, क्या ये इसका इश्क था? और अगर इश्क था तो ये कैसा इश्क था? नहीं, ये इश्क नहीं, ये इश्क जालिम था। एक झटके से उसने उसको छोड़ा और बाहर निकल गया। रुबाब की आंखों से चंद आंसू निकल पड़े, जिनको साफ करती वो नीचे आ गई। आलिया, रुबाब ने आलिया को आवाज़ दी। जी भाभी, मैं मामा पापा से मिलने जा रही हूँ, तुम भी चलो। अरे भाभी, मैं क्या करूँगी, आप जाके हो आए। भाभी की भी बात नहीं मानोगी? ओके मेरी प्यारी भाभी, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आई। आलिया ने पर्पल कलर की कमीज के साथ वाइट कलर की कैपरी पहन रखी थी। वो बहुत खूब प्यारी लग रही थी। 5 मिनट के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठी थी और आधे घंटे में वो घर पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम ऑल, रुबाब ने सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, आलिया ने भी सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा दोनों बैठो। रुबाब तो भाग कर अपने पापा के गले लग गई और रोना शुरू कर दिया। अशफाक साहब परेशान सी ही हो गए। सब ठीक है ना बेटा? जी पापा, मैं ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी बहुत, इसलिए। अरे पगली, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अशफाक साहब बोले। सब बैठकर बातें कर ही रहे थे कि उमर अचानक बाहर से आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आलिया को देखकर वो रुक गया। कैसे हो मेरे लाडले? रुबाब ने उमर से पूछा। हाँ भी ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इसके माथे पर अपने लब रखता हुआ वो बोला। मैं भी ठीक हूँ भाई, आप कैसी हैं आलिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बेटा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सानिया बेगम बोली। मम्मा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। रुबाब बोली, ओके बेटा। अशफाक साहब का फ़ोन आ गया था, इसलिए वो उठकर बाहर लॉन में चले गए और आप बैठे। आपकी स्टडी कैसी जा रही है? उमर ने आलिया से पूछा। हाँ, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। उमर बोला, जी करें, आपका नंबर मिल सकता है क्या? आलिया ने उमर को देखा जो इसकी जानिब देख रहा था। ओके श्योर, थैंक यू सो मच, उमर ने मुस्कुराकर कहा। माय प्लेयर। आलिया भी मुस्कुराई। अपना फ़ोन दें, आलिया ने कहा। वो मैं दूं? जाहिर है हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है यहाँ, तो आपसे ही मांग रही हूँ, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये लें। उमर ने अपना मोबाइल आलिया के हाथ में थमाया। ये ले, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, आलिया ने कहा। थैंक यू, उमर ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, एक और बात कहूँ? उमर ने कहा। जी कहें। क्या बात है? आलिया बोली। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उमर ने कहा। आलिया ने उमर की जानिब देखा और फिर बोली, सब खैरियत है ना उमर साहब? आपको मुझ में इतनी दिलचस्पी? आलिया ने जानबूझकर उमर को ऐसा बोला। हाँ हाँ, सब खैरियत ही है, उमर बोला। ओह दैट्स गुड, आलिया बोली, फिर खुद ही हंस दी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हैं आप? उमर ने आलिया को घूर कर देखा। कुछ नहीं, मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है, हम फ्रेंड्स हैं, आलिया मुस्कुराकर बोली। ओके फ्रेंड्स, उमर भी मुस्कुरा दिया था। वापस आने के बाद रुबाब अपने कमरे में चली गई। आलिया जिस
टाइम से आई थी। इस टाइम से उमर के बारे में सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। उमर तो पागल ही हो गया था आलिया को देखने के बाद, मगर वो फिलहाल ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। सबसे पहले वो ये बात आलिया से करना चाहता था कि आया इसकी मर्जी भी तो मालूम कर ले, फिर ही कोई स्टेप ले। रात को जरा आप जल्दी ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। रुबाब ऊपर आई तो लाइट ऑफ थी। उसने लाइट ऑन की। वो समझी कि जरा आप सो गया, मगर वो जाग रहा था। उसने अपना नाइट सूट ड्रेस उठाया और वॉशरूम चली गई। कपड़े चेंज करने के बाद वो शीशे के सामने आकर बैठी और अपने हाथों पर लोशन लगाने लगी। ज़राब उसको कब से देख रहा था। बिलाशुबा उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। ज़राब का बेसाख दिल चाहा कि वो इनको अपने लबों से छुए, मगर उसने क्या नहीं किया। उसको याद आया कि वो तो उसकी दुश्मन है और दुश्मन से सिर्फ नफरत की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। सुबह ज़राब को हेडक्वार्टर के लिए निकलना था। सबसे मिलकर वो ऊपर अपने रूम में आया। रुबाब ऊपर खिड़की से बाहर देख रही थी। रुबाब को ज़राब के आने का पता ना चल सका। ज़राब ने एक हाथ दीवार पर रखा। रुबाब को ज़राब के आने का पता ना चल सका। ज़राब ने एक हाथ दीवार पर रखा और जैसे ही वो पलटी, ज़राब को अपने इतने करीब देखकर वो घबरा गई। कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ, मगर लौट के आऊँगा बेबी। कुछ टाइम के लिए सुकून से जी लो, वापस आया तो ज़िंदगी छीन लूँगा तुमसे। कहते हुए उसने रुबाब के गले को दबाया। छोड़ो मुझे प्लीज़, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द की वजह से रुबाब की आंखों में आंसू आ गए थे। ज़राब ने उसको छोड़ दिया। उसने लंबी लंबी सांसें ली। ये तो शुरुआत है बेबी, आगे देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे एक और बात भी है, मैं तुम्हें मिस करूँगा। पूछो क्यों करूँगा, पूछो ना। ज़राब धाड़ा। रबाब अपनी जगह काम कर रह गई। क्यों? रबाब ने डरते डरते पूछा। क्यों? तुम मेरे पास नहीं होगी तो जुल्म किस पर करूँगा? ज़राब ने रुबाब की आंखों में देखते हुए कहा और रुबाब ना यकीनी से उसको देखे गई। ये कहकर वो रुका नहीं और चला गया। घसीट कर कब्र तक ले जाता है, इश्क जालिम है, पीछा नहीं छोड़ता। रुबाब पूरी रात बैठकर सोचती रही कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो ज़राब इतनी नफरत करता है इससे, और उसने फैसला कर लिया था कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगी। सुबह उठने के बाद रुबाब ने नाश्ता किया और ऊपर अपने कमरे में आ गई। उसने हर जगह चेक कर लिया, मगर कोई सुराग हाथ ना ही लगा। वो रूम से बाहर आई। मिर्ज़ा हाउस उसने अभी पूरा नहीं देखा था। वैसे भी इसको यहाँ आए एक वीक ही गुजरा था। वो फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। वो इधर उधर घूम रही थी कि अचानक एक रूम दिखाई दिया। वो लॉक था, और क्यों लॉक था? उसने लॉक था। सुनो, रुबाब ने एक मेड को आवाज़ दी। जी मैम, ये रूम लॉक्ड क्यों है? मैम, ये रूम हमेशा लॉक्ड ही रहता है, इसको ओपन करने की परमिशन नहीं है। ओके, तुम जाओ, रुबाब ने कहा। ओके मैम। रुबाब नीचे आ गई। वो रूम लॉक्ड क्यों है? यकीनन इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी जो मुझे सच का पता लगाने में हेल्प करेगी, मगर इसकी चाबी किसके पास होगी? डैड के पास या दादी जान के पास? ओ ग्रेट रुबाब, यू आर फैंटेस्टिक। रुबाब अपने आप से मुखातिब थी। इस सब में उसे उम्मीद की एक किरण नज़र आई थी। बस अब उसे सुबह का इंतजार था। सुबह वो जल्द ही उठ गई। आलिया यूनिवर्सिटी चली गई और शहबाज साहब भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। राहत बेगम लोहे लॉन में थी तो रुबाब के पास बहुत अच्छा मौका था। वो पहले शहबाज साहब के कमरे में गई। वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो राहत बेगम के रूम में गई और वहां जाकर तलाशी ली और जल्द ही उसको चाबियां मिल गईं। उसने चाबियां उठाई और फौरन ऊपर वाले फ्लोर की जाने भागी। ऊपर जाकर वो जा ही रही थी कि एक मेड ने उसको पुकारा। रुबाब मैम। हाँ, वो बोली। कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं नहीं, मैं बस विजिट करने आई हूँ। अच्छा सुनो जी मैम, मेरे लिए नीचे जाकर एक कप अच्छी सी कॉफ़ी बना दो, मेरे सर में दर्द है। ओके मैम, श्योर। मेड का बोलकर चली गई। उसने जल्दी से रूम अनलॉक किया और अंदर जाकर रूम का डोर बंद किया। वो एक खूबसूरत रूम था। इसमें रखी हर चीज़ बहुत कीमती थी। बेड के ऊपर एक खूबसूरत औरत की फ़ोटो लगी हुई थी। कौन थी ये औरत? ज़राब की शक्ल काफ़ी मिलती थी उससे। रुबाब ने सोचा, तो कहीं ये ज़राब की मॉम तो नहीं?